Hello, Namaskar, good morning, and welcome to the second doubt clearing session of a fundamental course on Indian Vedic astrology. I see a couple of viewers are online and I have received a couple of comments as well. So please, guys, confirm if you are able to hear me and if my video is also perfectly coming over to you. And today, actually, we have a huge list of queries to address, and I believe that today's session will definitely uh, overshoot the time limit that we have set for today's session. Good morning, Rajkumar ji. Nice to see you here. And I think you are also making a very good progress as far as learning systems of astrology is concerned. So we have 10 viewers as of now, and in fact, we have more than 300 students in India who have enrolled into this course by now and are really learning very fast. And some of them have already got the certificate of completion, some of them have also got the certificate of excellence. So that's a good thing. People have started learning and they have started analyzing the horoscopes. That's one wonderful thing that's happening. That's actually the objective of creating this course, so that people can analyze their horoscopes themselves, check the horoscopes of their friends and families, do not be dependent on others to have such any kind of guidance. So now we are at 11:03 a.m. So we have 12 viewers. Let's start with the session. And before I start the today's session, first of all, let's congratulate the people who have actually got the certifications. So it's just a small congratulation message to them. So Mr. Ramnath Beta ji from Bihar, he was the first one to clear the assignment. Then Mr. Rajesh Alva from Bangalore. Congratulations Deepti Jain from Bangalore. Then Nilesh Amrade from Pune. All these guys have got the certificate of excellence. They have cleared the assignment with excellent score, and they have all got the certificate of excellence. They have cleared the assignment, and I encourage everyone to learn faster, learn the concepts, clear all your doubts, either through this channel or from the one-to-one message that you continuously send me. And like the last session, this session also we try to do in the Hindi and English mixed language, so that everyone can get benefited. And as of now, I see the messages from Milen ji, from Rajkumar ji who are online, and I see 12 viewers are there. So जो भी अभी online है, kindly just send one small message so that I get an idea that who all is online. And then we will straight away start with the queries, because we already have a huge list of queries to address. And in between, whatever doubt you have with respect to that query, please raise it, and I'll try to look at the comment box as soon as possible. Okay, so let's start with the queries then in that case. Let me share my screen. And I think the screen should be visible to you. Please confirm if you can see the screen. I will quickly switch over to the comments box and will review whether the screen is also visible. Then we will go ahead. So आज के सेशन के लिए ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं. रामनाथ बैठा जी ने कुछ अपने सवाल भेजे हैं. देन दीपक जी हैव ऑलरेडी सेंड. दीप्ति जैन, लतीफ़ इज़ ऑल्सो लर्निंग वेल. लतीफ़, आर यू ऑनलाइन? प्लीज़ कंफर्म. एंड ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रामनाथ जी पूछते हैं दैट, लेट मी जस्ट कम. ओके, आई थिंक नाउ माय कैमरा वुड ऑल्सो बी विजिबल. ओके, लेट्स स्टार्ट. मानव जीवन कहते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों का नतीजा होता है. बिल्कुल सही बात. इसे सिस्टम अप्रोच में कैसे देखा जा सकता है? क्या इसके प्रभाव को ज्योतिषीय उपाय से ठीक किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो किस प्रकार के दोष दूर किए जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात रामनाथ जी. पिछले कर्मों का नतीजा यानी कि हमारे कर्म फल हम इस जन्म में भुगतते हैं, ये हमारी हिंदू मैथोलॉजी हमें सिखाती है, और जो कि सही भी है. जैसे हम जो भी हम आज हमारे एक्शंस होते हैं उनका रिएक्शन हमें
इमीडिएटली भी मिलता है, कुछ एक्शंस का रिएक्शन हमें कुछ समय के पश्चात मिलता है। तो पूर्व जन्मों के हमारे कर्मों का नतीजा जो हम अब भुगतते हैं, तो इसी बेसिस पे जो ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम हमारा डिफाइंड है कि हमारा हॉरोस्कोप बेसिकली ये डिपिक्ट करता है हमारे पिछले कर्म कैसे थे। जो हम सिस्टम अप्रोच में अभी सीखते हैं, इस कोर्स में जो हम सीख रहे हैं कि ये ग्रह की स्ट्रेंथ है, किसी ग्रह की वीकनेस है, जो ये दर्शाती है कि कौन सा एरिया ऑफ द लाइफ हमारा जो है वो फेवरेबल है, प्रोग्रेस करेगा, कौन से एरिया में हम थोड़ा सा लैग करेंगे या हमें चैलेंजेस आएंगे। इन अदर वर्ड्स, कहाँ पे अफ्लिक्शन है चार्ट में, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, जो हम सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। तो जहाँ एफ्लिक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि राहु केतु ने एफ्लेक्ट किया हुआ है, दैट मीन्स कि हमारी कुंडली में पितृदोष है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में हमारे पितरों का कुछ बुरा हुआ है, जो अब हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एनी लाइफ एरिया जो हम एनालाइज करते हैं। सिमिलरली अगर बृहस्पति कहीं पे अनफेवरेबल है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी जन्म में हमारे से गुरु दोष हुआ है, जिसका हर्जाना हमें अब भुगतना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी रिकमेंड कि आप गुरु की पूजा कीजिए, बृहस्पतिवार के गुरु के सारे उपाय हम रिकमेंड करते हैं। कहीं पे अगर सन की अफ्लिक्शन है, यानी सूर्य की अफ्लिक्शन है, दैट मीन्स कि फादर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी जन्म में रही है, तो फादर को जितना ज़्यादा हम फादर की सेवा कर पाएंगे, उतना हमारा सूर्य के उपाय अच्छे हो पाएंगे। तो कर्म फल स्ट्रेट अवे हमारा चार्ट हमें दर्शाता है, जिसका अगर प्रॉपर एनालिसिस हम कर पाएँ, और सिस्टम अप्रोच एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो स्ट्रेट अवे हमें दर्शाता है कि कहाँ एफ्लिक्शन है, क्या स्ट्रेंथ है। ये सारे रूल्स अभी आप सीख रहे हैं, और ये बहुत ही सटीक सिस्टम है। मैं 20 सालों से इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, और भगवान की दया से, गुरु जी के आशीर्वाद से अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, हज़ारों क्लाइंट्स हैं। तो ये सिस्टम अपने आप में बहुत अच्छा सिस्टम है। तो ये जो आपका बेटा जी सवाल था, बहुत अच्छा था कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल जो अभी हम भुगत रहे हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि खाली आपने किसी को रेमेडीज़ रिकमेंड करी या आपने रेमेडीज़ करी तो स्ट्रेट अवे हमें उसके अच्छे फल मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हमें हमारा कंडक्ट भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, हमारी सोच विचार हमें ठीक रखनी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो हम उपाय करें और दूसरी तरफ हमारे कंडक्ट ठीक ना हो, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। पिछले जन्मों को ठीक करने के लिए तो अब उपाय कर रहे हैं, और अभी भी अगर हम अपने कर्म खराब ही रखेंगे तो कहाँ से हमें अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सो आई थिंक काफ़ी तक हमने इस क्वेश्चन को कवर किया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज रिमेनिंग, प्लीज़ गेट बैक टू मी। लेट मी इमीडिएटली look at the comment box if there is anything. How should we decide the second significator? Rajkumar ji, I'll come to this question. Please park it for the time being. जन्मांक ग्रहों के प्रभाव ही ट्रांजिट और दशा के समय मिलते हैं या कुछ नया भी हो जाता है? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ रामनाथ जी ये एप्लीकेबल होती है कि जन्मांक ग्रह यानी कि जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं वो हमें हमारे कर्म फल दिखा रहे हैं कि ये एक आपका चार्ट है जिसको हम डिकोड करके समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एरिया ऑफ द लाइफ हमारा चैलेंजिंग सिचुएशन में है। साथ ही हम किस तरह किसी सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो फ्री विल जो एक मास्टर की हम लेके आए थे उसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कोई और डिवाइन इंटरवेंशन साथ में काम कर रही है कि नहीं। दैट मीन्स कि हमने कोई उपाय करने स्टार्ट किया और उसकी इंटरवेंशन साथ में आई, तो नेचुरली कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ता है। तो कुछ नया भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स द रेमेडियल मेजर्स दैट यू फॉलो। किस श्रद्धा से आप अपनी रेमेडीज करते हैं और कितनी रेगुलरिटी से उनको करते हैं, कितनी डिवाइन इंटरवेंशन और हमारी उन चीज़ों में आती है। तो चार्ट तो एक जन्म के समय का है, अब उसके बाद कितने इंटरवेंशन उसमें हमने ली हैं, कितनी बार हमने रेमेडीज़ की हैं, वो नेचुरली उस इम्पैक्ट को चेंज करती है। यस, वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, यदि यह लगन में हो तो जातक पर इसका क्या प्रभाव होगा, जबकि उच्च के केतु 7वें में होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सबसे पहले रामनाथ जी ये देखना होगा कि जो राहु केतु लगन में और 7वें में बैठे हैं उनका MEP से डिफरेंस कितना है। राहु केतु जनरली आर कंसीडर्ड एज मेलेफिक प्लैनेट इन सिस्टम्स अप्रोच। वो हमेशा बुराई करते हैं क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उन्हीं को, हिडन पॉइंट्स को ये नाम दिया गया है, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड को। तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने अंदर लेके बैठे। अब वो अच्छा फल तभी दे पाएंगे जब वो चार्ट में कहीं भी अफ्लिक्शन ना दे रहे हों।
जब हम कहते हैं कि अफ्लिक्शन ना दे रहे हों, दैट मीन्स कि ना तो वो किसी हाउस को अफ्लिक्ट करें, दैट मीन्स कि वो एमईपी से दूर हो, और ना ही वो किसी प्लैनेट को, हम यहाँ नेटल चार्ट की बात कर रहे हैं, वो नेटल चार्ट में किसी प्लैनेट को भी अफ्लिक्ट ना कर रहे हैं। अगर ऐसा है किसी हॉरोस्कोप में कि राहु केतु एमईपी से दूर हैं और नेटल चार्ट के किसी भी प्लैनेट को अफ्लिक्ट नहीं कर रहे, तब वो अच्छा फल दे सकते हैं। अब अगर वो, आपने बोला कि लगन में राहु है, अगर वो लगन में है तो दैट मीन्स कि वो पर्सन को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाएगा। अगर वो एमईपी के नज़दीक हो गया तो फिर आदमी सोसाइटी के नॉर्म्स को भी भूल जाएगा, कुछ भी गलत करके अपना फ़ायदा करने की सोचेगा, उसकी मेंटेलिटी मैनिपुलेटिव होगी। एमईपी से दूर है तो ये ट्रेड्स थोड़े कम होंगे, बट एम्बिशियस वो ज़रूर होगा। और क्योंकि केतु 7वें में है और एमईपी से अगर नज़दीक हो गया एमईपी के, तो नेचुरली उसका मैरिटल लाइफ पे इम्पैक्ट होगा। 7वें में बैठ के वो 11वें को देखेगा तो इनकम पे उसका इम्पैक्ट होगा। तीसरे को देखेगा तो इनिशिएटिव और वेंचर्स पे और कम्युनिकेशन पे उसका इम्पैक्ट होगा। एमईपी से दूर हुआ तो वो इम्पैक्ट होंगे बट कम होंगे। केतु जनरली नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। कोरोना एक वैश्विक महामारी बन गया है। अनेक ज्योतिषियों ने इस पर बहुत सारी ज्योतिषीय भविष्यवाणी की हैं। अपने पाठकों के लिए अपना विचार भी दें। देखिए, ये जहाँ पे एक बड़े समुदाय की बात आती है तो वहाँ पे बेसिकली हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे होते हैं कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे या पूरी सोसाइटी पे या पूरे स्टेट पे या कंट्री पे जो इम्पैक्ट है वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के तहत कवर किया जाता है, जिसको हमने इस कोर्स में अभी नहीं डिस्कस किया है। बट स्टिल जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कोरोना के ऊपर अगर हम बात करें, अब डिपेंड करता है कि किस सिस्टम के थ्रू कैसे एनालाइज कर रहे हैं। अगर इस डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत डिबेटेबल पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सबने अपने अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिए हैं इसके ऊपर, और सच्चाई तो नेचुरली जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं हमारे सामने आती हैं। बट इसको देखने का सबसे सटीक तरीका ये है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, यानी कि हम सब लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं, उस कंट्री का एक चार्ट है जिसको हम एनालाइज करके कुछ इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ लेवल तक, कुछ हद तक। इसके लिए थोड़ी देर के लिए हम इंडिया इंडिपेंडेंस चार्ट को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले एक बार ज़रा कमेंट्स पे देख लें, नज़र मार लें कि कोई क्वेश्चंस आए हैं। ओके, राइट, सो एवरीवन इज़ विद सिंक। आई थिंक एवरीवन इज़ नाउ अंडरस्टैंडिंग दी answers of these queries. So let me first quickly try to open the India independence chart if we have somewhere. Let me quickly open it. I think I have it in some other folder. Let me quickly open it. Because India independence chart is the one that we actually need to follow. And that would give the correct picture to this specific query. Okay. So this is what we have for India independence chart. 15th August 1947. 12 a.m. I think it is 12 a.m. 12 a.m. Yes, 12 a.m. Delhi. The time when India got independence. तो ये वृष लगन की कुंडली है इंडिया की, और इस कुंडली के हिसाब से अभी चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है। चंद्रमा में शनि, राइट। 15th August 1947, 12, no, this is wrong, no, this is right, 12 a.m. I was confused कि PM तो नहीं है कहीं, yes। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि जो महामारी की हम बात कर रहे हैं, जो हम हॉस्पिटलाइजेशन इतनी हो रही हैं, इतने ग्रुप में, इतने बड़े लेवल पे जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 12th हाउस की हम प्राइमरीली बात कर रहे हैं। एंड 12th लॉर्ड इज मार्स विच इज़ मंगल, प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द MEP ऑफ द 2nd हाउस। सो लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन होने की वजह से जो 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ स्टेटस, ऑलरेडी कंट्री का स्टेटस भी दांव पे लगा हुआ है।
और ट्रांजिट में अभी जुपिटर भी 5 डिग्री के आसपास चल रहा है और थोड़े दिनों में ये 7 पे स्टेशनरी भी हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये कि आने वाला समय भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम एफमेरिसिस में जाके डिग्रीज चेक करें, 7 डिग्री का बृहस्पति होने वाला है 27 मई के आसपास, और तब से लेके वो स्टेशनरी पोजीशन रखेगा अपनी करीब करीब मिड जून तक। तो जब बृहस्पति, हम मई एंड की बात करें और बृहस्पति भी जब 7 डिग्री का होगा, तो 7 डिग्री का बृहस्पति जब अपना 5वां एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे देगा तो नेटल के मंगल को एग्जैक्टली अफ्लिक्ट कर रहा होगा। तो ये मई एंड से लेके और मिड जून तक का भी टाइम कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर हम देखें तो जो राहु टू सैटर्न की अफ्लिक्शन ट्रांजिट में चल रही है, ये अभी 3 डिग्री अवे हैं। पीछे जब ये 1 डिग्री के आसपास थे तो नेचुरली बहुत सारे केसेस हमारे बढ़ गए थे। ये सिचुएशन जुलाई में फिर पैदा होने वाली है। जब ये, अगर हम जुलाई का भी ट्रांजिट एक बार स्टडी कर लें कि राहु 15 डिग्री के आसपास होगा और शनि वापस रेट्रोग्रेड मोशन में 16 डिग्री, 1 डिग्री डिफरेंस पे आ जाएगा। तो ट्रांजिट में जब शनि के ऊपर राहु का इतना मेजर इंपैक्ट है और शनि की इस वक्त अंतर्दशा चल रही है इंडिया इंडिपेंडेंस चार्ट में, तो जब 1 डिग्री ऑर्बिट में पहले इसने इतना नुकसान किया, तो हम थर्ड वेव की बात सुन रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो जुलाई के महीने में पड़ने वाली है, जहाँ पे ये इससे भी तेज़ी में इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उस समय जुपिटर से मंगल भी अफ्लिक्ट हो रखा होगा और डबल अफ्लिक्शन होगी। अब सवाल ये आता है कि जब हम ये चीज़ें देख पा रहे हैं तो इनका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मुंडेन लेवल पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स को ही समझाना बड़ा मुश्किल है दैट एस्ट्रोलॉजी एंड दिस सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। दिस इज़ द रियल चैलेंज आई एम टेलिंग यू गाइस, क्योंकि बहुत लोग तो इस कोर्स को एज अ हॉबी कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, कर सकते हैं, बट चैलेंजेस को साथ में समझना बहुत ज़रूरी है। एज अ रिकॉर्डेड कोर्स इसमें एक लिमिटेशन थी कि एक टाइम बाउंड हमने इसको बनाना था, तो वो हमारी एक एफर्ट रही है पहले कोर्स में। लेकिन अब आने वाले कोर्सेज में जहाँ हम एडवांस लेवल पे जाएंगे या हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे, तो ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स को कहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कहाँ क्या चैलेंज आता है। ये एक चैलेंज होता है कि लोगों ने आपसे, किसी ने क्वेरी पूछी, आपने उसका आंसर किया, अब वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते एडवाइस, इज इज टोटली ऑन देम। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब इतना बड़ा चैलेंज है कि कोई एडवाइस लेके फॉलो ही नहीं करता, तो मुंडेन लेवल पे किसको रेकमेंड करेंगे और कौन फॉलो करेगा। सो दैट इज़ वाई आई जनरली अवॉइड मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, बट हैविंग सेड दैट वी नो दैट दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। ये हमारे सामने सिचुएशन आने वाली है, एटलीस्ट हम तो अपना सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी रेमेडीज कंटिन्यूसली परफॉर्म कर सकते हैं। अब इंडिया चार्ट हमें ये डिपिक्ट कर रहा है, तो कौन उसकी रेमेडीज करेगा? सरकार तो इन चीज़ों में विश्वास करेगी नहीं, कौन अपनी बात वहाँ तक पहुँचाए, इतनी एफर्ट कौन डाले? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है, स्पेशली जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो बैठा जी के सवाल की अगर बात करें कि कोरोना वैश्विक महामारी है, तो ठीक है, अब इसके लिए हमें सिचुएशन हमारे सामने है, हमें अपना सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन तो चैलेंजिंग चल रही है, आगे और भी चैलेंजिंग आनी है, 2-3 महीने क्लियरली आइडेंटिफाइड है फ्रॉम दिस हॉरोस्कोप। एनी मोर क्वेरीज? नो, ओके, गुड। जो लोग कोरोना से ग्रसित हो जा रहे हैं, कहते हैं कि उनके लग्नेश पाप प्रभाव में होते हैं या कमज़ोर होते हैं, दैट मीन्स कि उनका असेंडेंट में कोई ना कोई इश्यू होता है। 6th लॉर्ड या 6th हाउस का भी अहम रोल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा जी। जब तक, अगर हम हेल्थ कंसर्न्स की बात करेंगे, जब तक असेंडेंट लॉर्ड किसी के चार्ट में अफ्लिक्ट नहीं होगा, नेटल चार्ट में अगर है तो नेटल अफ्लिक्शन है, वो जब भी इस तरह की पोजीशन आएगी वो प्रॉब्लम में फंसेगा इंसान। प्राइमरीली हेल्थ के लिए असेंडेंट और 6th हाउस को ही हम कंसीडर करेंगे। 8th लॉर्ड भी देखेंगे अगर क्रोनिक डिजीज़ की बात हो रही है, या 8th लॉर्ड 1st और 6th पे भी अफ्लिक्शन दे रहा है। अब काफ़ी लोग इस समय इस समस्या से जूझ रहे हैं, और पीछे राहु केतु ने साइन चेंज किया, जुपिटर ने साइन चेंज किया, रेट्रोग्रेड मोशन में वापस आए, शनि इम्पैक्ट हुआ, तो जिन जिन के भी नेटल चार्ट में ये प्लानिटरी पोजीशन इम्पैक्ट कर रही होगी, वो इस प्रॉब्लम में बहुत जल्दी इस समस्या को फेस करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेग क्वेश्चन इसलिए हो गया कि उन स्पेसिफिक लोगों के डेटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जो इस प्रॉब्लम से निकले हैं या निकल रहे हैं या
गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हो गई और वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि वो डेटा कंपाइल किया जाए और उसमें से ढूंढ के देखा जाए, एनालाइज करके कि कहाँ पे कॉमन पॉइंट्स हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी और अच्छी रिसर्च एक्टिविटी ये है। तो अगर आप या कोई भी स्टूडेंट्स इस तरीके के किसी लोगों के संपर्क में हैं जहाँ लोगों की कोरोना से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ केसेस मेरे पास भी आए हैं, अभी रिसेंटली भी एक केस स्टडी आई थी, तो वो डेटा हम कंपाइल करके उन चार्ट्स को एनालाइज करके एक स्पेसिफिक सेशन में स्पेसिफिक इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर सकते हैं। दीपक कुमार जी, हाउ टू आइडेंटिफाई रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ अ प्लैनेट। दीपक जी, जब हम हॉरोस्कोप कास्ट करते हैं, जनरली आजकल सब सॉफ्टवेयर से ही बनाते हैं, और जनरली अब मैं इंडिया इंडिपेंडेंस चार्ट को बंद कर देता हूँ, एक रैंडम एग्जांपल हमने बना रखा है, इसको हम देखते हैं। इसमें कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है। ओके, लेट्स क्रिएट वन एनी अदर हॉरोस्कोप वेयर एनी प्लैनेट, ओके, नो 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 नो, वेट अ मिनट, जुपिटर इज रेट्रोग्रेड, राइट। सो दीपक जी, जब भी आप चार्ट बनाएंगे, आपको अगर ज्योतिष टूल्स यूज करते हैं तो नेचुरली प्लैनेट में यहाँ पे भी लिखा होता है कुंडली में ही, अदरवाइज राशि चार्ट एक टेबल जरूर हमें मिलता है, वहाँ प्लैनेट के सामने आर लिखा होता है, दैट मीन्स कि वो रेट्रोग्रेड मोशन में है। उस कुंडली में तो ये पता चल गया। दूसरा तरीका है कि जो एक एफिमेरिसिस हमारे को मिलता है, जिसको एक हम पत्रा भी बोल देते हैं कई बार, तो यहाँ पे प्लैनेट की मोशन लिखी होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर हम मरकरी को देखें, यहाँ साफ देख के पता चल रहा है कि 31 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड मोशन में जाएगा। जब तक वो आर लिखा है, दैट मीन्स कि वो उल्टी दिशा में चल रहा है। तो 31 मई से लेके और 23 जून तक मरकरी विल बी रेट्रोग्रेड, उसके बाद वो फिर डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये टूल्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि प्लैनेट्स की मोशन क्या है। अब राहु केतु के लिए उल्टा है, राहु केतु जनरली रेट्रोग्रेड चलते हैं, तो जब वो डायरेक्ट होते हैं तो डी मार्क कर देते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। What is the zodiac sign of a person, the ascending sign or the sign of the house of the moon? आई थिंक यहाँ पे दीपक जी आप राशि की बात कर रहे हैं कि आदमी की, पर्सन की राशि कैसे आइडेंटिफाई होती है। यहाँ पे हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, लगन, राशि यानी कि हिंदू सिस्टम के हिसाब से राशि, और एक सन साइन, जो जनरली कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि अखबार में हम पढ़ रहे थे अपनी रीडिंग किसको कंसीडर करें। अब सन साइन जो डेट स्पेसिफिक है कि एक्स डेट से वाई डेट तक के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी राशि ये है, दैट बेसिकली इज सन साइन विच वी इन हिंदू सिस्टम डू नॉट कंसीडर इट, दैट इज द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिस्टम। इन हिंदू सिस्टम वी कंसीडर ओनली टू थिंग्स, वन इज द लगन एंड सेकेंड इज द राशि। राशि इज दैट साइन वेयर मून इज प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, इट इज एज सिंपल एज दैट। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है वो उस व्यक्ति की राशि मानी जाएगी। अब इस कुंडली की अगर हम बात करें, आज 9 मई 11:23 पे अगर किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसकी राशि मीन राशि मानी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा उस राशि में स्थित है। उस राशि के कौन से चरण में वो है, उसके हिसाब से उसके जन्म का अक्षर निकलेगा। लेकिन लगन हमारा वही होगा जो कुंडली में राइजिंग डिग्री असेंडेंट के रूप में आया। तो ये कर्क लगन की कुंडली है जिसमें आदमी की राशि जो है वो मीन है। अब अगर चंद्रमा लगन में है तो उसका लगन और राशि दोनों सेम हो जाएंगे। चंद्र कुंडली का सिस्टम अप्रोच में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है जिसको हम कंसीडर नहीं करते, बट राशि का अगर आप सवाल करें तो जिस साइन में चंद्रमा की प्लेसमेंट है वो हम इंसान की राशि मानेंगे। Can astrology tell the exact date of future events like marriage or death? Now, when we say exact, let me keep it as bold. That means you are trying to pinpoint a specific event to a date, and the next question would come at which specific time of the day. That is very difficult, and no one should actually venture out into that. Reason being कि आज की डेट में जो भी सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं ये 100% हमारे पास अवेलेबल नहीं है। किसी समय पे रहा होगा, क्योंकि हिंदू एस्ट्रोलॉजी, हिंदू सिस्टम वर सो एडवांस्ड, बट विद टाइम काफ़ी चीज़ें तो हमारी डिमिनिश हो गई, कुछ थोड़ी बहुत परसेंटेज बची है। सबसे बड़ी बात कि वो सारी चीज़ें जितनी भी थी श्लोक के रूप में, मंत्रों के रूप में संस्कृत टेक्स्ट में थी, और उन्हीं को ट्रांसलेट करके आज हमारे पास कुछ परसेंटेज ऑफ द सिस्टम इज अवेलेबल, और जिसने भी ट्रांसलेट किया उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन साथ में आई, और हम उसको फॉलो करके कुछ करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाउ एक्यूरेट इज द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द नेटिव।
टाइम में थोड़ा भी डिफरेंस अगर हुआ तो हमारी डिग्रीज की वजह से दशाएं, और स्पेसिफिकली अगर हम पिन पॉइंट करने की बात करें तो दशा के अंदर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, अगर 5 लेवल तक हम दशा को तोड़ें तो बहुत ज़्यादा उसमें हमारे पास वेरिएशन आता है। ज़रा सा टाइम चेंज होगा तो हमारी सूक्ष्म दशा पूरी हिल जाएगी। अब पिन पॉइंट करने के लिए, डेट स्पेसिफिक इवेंट को निकालने के लिए उस एक्यूरेसी तक हमें जाने की ज़रूरत है। ना वो टाइम स्पेसिफिकली एग्जैक्ट अवेलेबल होगा, ना वो आपके पास सिस्टम आज की डेट में है। तो उस लेवल तक एक्यूरेसी में, क्योंकि वन थिंग एवरीवन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट एस्ट्रोलॉजर्स डू नॉट हैव टेलीविजन। ये एक प्रोफेसर चौधरी की बहुत सटीक बात है, हमें हमेशा याद रखता हूँ और बोलता हूँ कि हमारे सामने कोई टेलीविज़न तो नहीं है कि हम देख के और एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप इंसान को बता सके। एक जनरल ट्रेंड हमें पता लगता है, एक जनरल एनालिसिस हम निकालते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं। मैरिज की डेट, एग्जैक्ट डेट निकालना प्रश्न चार्ट के थ्रू फिर भी कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो टाइम हमारे हाथ में होता है, और दैट इज़ वेयर एक्चुअली केपी एस्ट्रोलॉजी रूल्स ओवर। वो एक अलग सिस्टम है, एक अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश उसमें की जाती है, बट स्टिल उसके अंदर भी एरर्स की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वी शुड ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट टूवर्ड्स गिविंग दी जनरल एनालिसिस। डेट ऑफ डेथ की अगर बात करें, आई जनरली डू नॉट वेंचर आउट इनटू दिस। पहली चीज़ तो अगर आप लॉन्गिविटी एनालाइज कर रहे हैं किसी के लिए, तो उसको सामने वाले को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपके पास कंसल्टेशन लेने के लिए आया है, प्रॉब्लम में है, डिस्ट्रेस में है, हमें उसको मोटिवेशन लेवल बढ़ाना है, उसको फर्दर डिस्ट्रेस नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं करना। पता लगाना अपनी जगह है, और स्पेसिफिक डेट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, एक जनरल ट्रेंड हमें देना होता है। अभी 2 दिन पहले भी मेरे पास एक केस आया था। आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट हैज सेंट द क्वेरी एज अ पेड कंसल्टेशन। अब उसमें क्लियरली इंडिकेटेड है कि कहीं ना कहीं लॉन्गिविटी स्ट्रेस में है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पता लग रहा है कि ये इतने 15 दिन के बीच का पीरियड है, स्पेसिफिक डेट भी पता लग पा रही है, बट हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन रिकमेंड दी रेमेडीज, वी कैन रिकमेंड दी महामृत्युंजय मंत्र कि इसका जाप किया जाए। अंत समय तो आ गया, तो ये बड़ा मुश्किल है ऐसे में किसी को बताना कि आपकी ये डेट है डेथ की, नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेड ही नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन। दीप्ति जी, आई थिंक दीप्ति जी के क्वेश्चंस के आंसर्स हमने ग्रुप में भी दे दिए थे, सो इसको क्विकली रिव्यू कर लेंगे। रीज़न बीइंग कि आज हमारे पास ऑलमोस्ट 35 क्वेरीज हैं। मुझे लगता है कि हम या तो ओवरशूट करेंगे या हमें एक नेक्स्ट सेशन रखना पड़ेगा, but still quickly try to go through all the questions that we have. Is combustion of functional malefic planet good for the horoscope? See, any weakness in the horoscope is not good. combustion के केस में क्या है कि अगर वो otherwise planet strong है तो जनरली परेशान नहीं करेगा, ट्रांजिट से कोई प्रॉब्लम जब आ रही होगी तब वो डिस्टर्ब करेगा। फंक्शनल मेलेफिक्स की स्पेसिफिकली अगर बात करें, कई बार ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मेलेफिक प्लैनेट है, अगर उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है तो क्या कर लेगा, वो ज़्यादा खतरनाक होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि फंक्शनल मेलेफिक अगर वीक हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया, नवांश में डेबिलिटेशन में चला गया, कंबस्चन आ गई, कोई एफ्लिक्शन उसके ऊपर आ गई, वो और खतरनाक हो जाएगा और ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा करेगा। Even if the functional malefic is exalted or in the मूल त्रिकोणा sign or combust, can it afflict any house or planet? Definitely yes, क्योंकि है तो वो malefic ना। What is the effect of functional malefic exalted aspecting its own मूल त्रिकोणा sign, positive और negative? फंक्शनल मेलेफिक जब अपने मूल त्रिकोण साइन में प्लेस्ड होता है तब ही वो अच्छा माना जाता है, उसके अलावा वो कहीं भी हो, वहाँ दूसरी जगह बैठ के भी अपने घर पे एस्पेक्ट दे दे, वो खराब माना जाएगा। सिंपल। लतीफ़ जी के क्वेश्चंस, वेरी वैलिड क्वेश्चंस एंड दिस मे टेक सम टाइम। लतीफ़, आई एम रियली वेरी ग्लैड दैट यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग वेल। इट विल डेफिनेटली टेक मोर टाइम, समय तो लगेगा देखिए सिस्टम सीखने में, समझने में, बट एक बार अच्छे से आप लोग एफर्ट करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एनालाइज ना कर पाएँ। अंडर एक्सेप्शनल केसेस ओनली जेमस्टोन्स कैन बी सजेस्टेड फॉर फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट्स। लतीफ़, फंक्शनल मेलेफिक्स के लिए मैंने पहले भी रेकमेंड किया है कि जेमस्टोन्स के पीछे मत भागिए, फंक्शनल मेलेफिक्स को स्ट्रेंथ मत दीजिए, बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाती है कई बार। अभी एग्जांपल का आपने रिक्वेस्ट किया, एग्जांपल से स्टडी करके देखते हैं, आपको मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। मेलेफिक्स के लिए जनरली आप अवॉइड कीजिए,
only and only functional benefics if they are weak you recommend gemstones और कलर थेरेपी। जो हम एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहे हैं वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 12th लॉर्ड की हम बात करते हैं, 12th लॉर्ड इज अ मेलेफिक प्लैनेट। अब 12th लॉर्ड, टेक एन एग्जांपल ऑफ लिब्रा, आई विल शो दी हॉरोस्कोप ऑल्सो, बट टेक एन एग्जांपल ऑफ लिब्रा। इन केस ऑफ लिब्रा, मर्करी बीइंग दी 12th लॉर्ड बिकम्स दी मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट। अब एज पर ग्राउंड रूल तो हमने उसको जेमस्टोन रिकमेंड नहीं करना, लेकिन अगर मर्करी 0 डिग्री का है या बहुत ही वीकनेस लेके है तो उसकी मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी इंसान की, क्योंकि 12th हाउस गवर्न्स द कॉन्जुगल ब्लिस, द बेड प्लेजर्स। इन एडिशन टू दैट 8th लॉर्ड, 7th लॉर्ड या 8th हाउस और 7th हाउस और 2nd हाउस 4th हाउस की पोजीशन भी मैटर करेगी, 5th हाउस की पोजीशन भी मैटर करेगी फॉर अफेयर्स। बट 12th लॉर्ड अगर इतनी ज़्यादा वीकनेस में है, बीइंग अ मेलेफिक प्लैनेट, नेटल चार्ट में कहीं अफ्लिक्शन नहीं दे रहा, वी कैन स्टिल रिकमेंड इन दैट पर्टिकुलर केस एन एमरल्ड फॉर द पर्सन, बट वो भी टेम्परेरीली होगा। ट्रांजिट देख के एस्ट्रोलॉजर को मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रांजिट देख के बताना पड़ेगा इस डेट से इस डेट तक पहन लीजिए, इस डेट से इस डेट तक उतार लीजिए। अब कौन इतना डिलीजेंटली उतनी मेहनत करके रिकमेंड कर सकता है, तब तो वो चीज़ एक बार को फिर भी काम कर जाएगी, अदरवाइज तो कहीं ना कहीं से कोई लॉस उसको परेशान कर देगा, या हॉस्पिटलाइजेशन आ जाएगी, या उसके जेल जाने के योग बन जाएंगे। तो मेलेफिक्स के जेमस्टोन्स को जनरली अवॉइड किया जाता है। जनरली सिस्टम अप्रोच में तो हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप 6, 8, 12 के स्वामी के नग पहना दो, नुकसान होता है। अब केस स्टडी की अगर हम बात करें, ये एग्जांपल हम लेते हैं, हम कह रहे हैं कि राहु केतु एमईपी से दूर होने चाहिए। तो इस चार्ट में अगर हम देखें 6-7 डिग्री का लगन है, 25 डिग्री के राहु केतु एमईपी से दूर हैं, कोई एफ्लिक्शन हाउसेस पे नहीं है। इनका एस्पेक्ट जहाँ जा रहा है, केतु 5वीं दृष्टि सूर्य पे दे रहा है, सूर्य का ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस 1 डिग्री है, तो 5 डिग्री दूर हो गया, सूर्य पे कोई उसकी एफ्लिक्शन नहीं है। राहु के 5वें एस्पेक्ट के सामने कोई प्लैनेट नहीं है, 9वें के सामने कोई प्लैनेट नहीं है, 25 डिग्री के साथ राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठा नहीं है, राहु केतु के 9वें दृष्टि पे कोई प्लैनेट बैठा नहीं है। तो राहु केतु ना ही किसी हाउस को एफ्लिक्शन दे रहे हैं इस चार्ट में, ना ही किसी प्लैनेट को। सो ऑल दोज कंडीशंस आर नाउ मैच्ड, बट राहु केतु 6ठे और 12वें में हैं। सो प्लेसमेंट की वजह से हम कहेंगे कि राहु केतु वीक है। तो क्या हम इनके नग पहना दें, अगर ये सवाल आपका आता है। अब इस केस में इशू क्या होगा, अगर हम ट्रांजिट को एनालाइज करें। आज की डेट में ये जन्म है 6 दिसंबर 1989 का, आज की डेट में राहु केतु 16 डिग्री के हैं, चंद्रमा 26 डिग्री है। 1 साल पीछे का ट्रांजिट हम चेक कर लें, राहु केतु 5 डिग्री के थे, नेटल में मरकरी 4 डिग्री का है, ऑलमोस्ट 457 5 डिग्री का ही है। तो ट्रांजिट केतु एट दैट टाइम 1 ईयर बैक, ट्रांजिट केतु वॉज एफ्लिक्टिंग नेटल मरकरी। अब अगर केतु का आपने जेमस्टोन, क्योंकि नेटल चार्ट में हमने बोला कि जी ना तो एमईपी एफ्लिक्शन है ना कोई प्लैनेट एफ्लिक्टेड है, तो केतु का नग पहना देते हैं क्योंकि केतु 6ठे में है। लेकिन उस ट्रांजिट सिचुएशन में हमने ध्यान नहीं दिया और नग उसने पहना हुआ था। जब ये ट्रांजिट में केतु 5 डिग्री का होके नेटल के मरकरी को अफ्लिक्ट करेगा, जो कि 2nd लॉर्ड और 5वें में बैठा है, फैमिली लाइफ, वेल्थ, फैमिली और प्रोफेशन, सारी चीज़ों में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ट्रांजिट का इतना इम्पैक्ट आता है। नेटल में तो एफ्लिक्शन नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में है। ट्रांजिट में कब आ गई, हर प्लेनेट का ट्रांजिट मूवमेंट हर क्लाइंट के लिए कितना आप एनालाइज कर पाएंगे एक साथ, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं अगर आज की डेट में अपना डेटाबेस देखूं, हज़ारों क्लाइंट्स हैं, कितनों का बैठ के हम एनालाइज कर पाएंगे, इट इज़ वेरी टफ। और हमने किसी को एक रिकमेंडेशन दी, उससे किसी का नुकसान हो गया, तो हमने जो 10 साल में अच्छा काम किया वो सारा बेकार हो जाएगा। नहीं करना चाहिए। मेरी बार बार यही रिकमेंडेशन है कि मेलेफिक्स के जेमस्टोन्स मत रिकमेंड कीजिए प्लीज़। Okay, let's go to the next question. As per Sattva, we can't recommend gemstone for Saturn, it being the functional malefic. Again, I think it's similar question, but traditional Vedic astrologers do suggest it's their problem. If they do not understand the implications, we can't do anything about it. From practical point of view, will blue sapphire create problems for this ascendant? I am not sure which ascendant you are talking about. अगर हम लेकिन शनि के मेलेफिक होने की बात कर रहे हैं तो मीन लगन के लिए मेलेफिक होगा,
टॉरस के लिए होगा, कैंसर के लिए होगा। 3 लगन है जहाँ पे शनि मैलेफिक होगा। ब्लू सफायर रिकमेंड नहीं करना चाहिए। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। शुड वी रिक्वायर टू सी MEP ऑफ एवरी हॉरोस्कोप फर्स्ट? यस, सबसे पहले MEP चेक कीजिए और बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट चेक कीजिए। सपोज मून इज द मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लियो। मून इज द 12th लॉर्ड फॉर एन ascendant, but it is away from MEP by more than 5 degrees. Do clear with example. Do we need to see MEP difference? इसमें एग्जाम्पल की लतीफ़ ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है कि अगर लगन 10 डिग्री का है, चंद्रमा 25 डिग्री का है, 15 डिग्री दूर है, कहीं भी बैठा हो, किसी भी हाउस में हो, MEP अफ्लिक्शन नहीं देगा। लगन 10 डिग्री का है, चंद्रमा 10 डिग्री की रेंज के आसपास 10 + 5 10 - 5 कहीं भी सिचुएटेड है किसी भी हाउस में, उस हाउस पे और एक्सपेक्टेड हाउस पे अफ्लिक्शन देगा। सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। A resident of India settles in US. Very good question, Latif. A resident of India settles in the US where his health issue automatically gets okay. Does transit of a person become different at different country? No. जन्म स्थान कहाँ था? फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का जन्म है, दिल्ली में पला बड़ा है, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड लेके उसका चार्ट बना है, ट्रांजिट का इम्पैक्ट तो यहीं से एनालाइज करेंगे। फॉरेन कंट्री में जाके हेल्थ इंप्रूव हुई है, आपने एग्जाम्पल दिया, हेल्थ इंप्रूव हुई, 6th हाउस असेंडेंट और 12th हाउस की हम बात कर रहे हैं। फॉरेन सेटलमेंट यानी कि 12th हाउस की सिग्निफिकेशन, दैट मीन्स कि 12th हाउस कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में था, फॉरेन सेटलमेंट हुआ, फॉरेन चला गया, हेल्थ इंप्रूव हो गई, तो 12th हाउस पे अफ्लिक्शन नहीं है। सिंपल, यहाँ से एक चीज़ समझ में आई। ट्रांजिट का इम्पैक्ट तो हम उसके नेटल चार्ट के नेटल लोकेशन से ही चेक करेंगे। अब क्योंकि वो अलग कंट्री में बैठे हैं साहब, तो उस केस में कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को हमने फर्दर क्रॉस चेक करना है, वैलिडेट करना है, तो हम उस लोकेशन के हिसाब से प्रश्ना चार्ट बना के चेक करेंगे। ये एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है कि नेटल चार्ट तो उसका फिक्स हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी प्लेसमेंट उसकी नेटल चार्ट पे हो रही है वो उसको इम्पैक्ट ज़रूर करेगी, वो दुनिया में कहीं भी हो। लेकिन वो कोई स्पेसिफिक इवेंट करना चाहते हैं, कोई वेंचर अपना लॉन्च करना चाहते हैं, कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, या कोई मुहूर्त देख रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक उनकी क्वेरी है, फॉर दैट मैटर एनी क्वेरी, तो जिस लोकेशन पे हैं वहाँ के लॉन्गिट्यूड्स चेक करके वहाँ के टाइमिंग से प्रश्ना चार्ट बना के हम उसको फर्दर वैलिडेट करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन इसको हम बोलेंगे। व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ मेटल्स फॉर जेमस्टोन्स? ये एक सेट फार्मूला है, सेट प्रोसीजर है जो कोर्स में हमने बताया है कि अगर आप किसी को येलो सफायर रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे आपने रेड पर्ल, आई थिंक कुछ नहीं, आई थिंक यू मेंट रेड कोरल एयर, तो उस केस में जनरली हम गोल्ड रिकमेंड करते हैं। कहीं ना कहीं जैसे पन्ने की बात आती है या ब्लू सफायर की बात आती है, गोल्ड सिल्वर दोनों चलते हैं। एंड देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट ऑफ द नेटिव कि वो कितना उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठंडे और गर्म स्टोन का भी रिलेवेंस आता है, जैसे कि रूबी है, गर्म स्टोन है, वो गोल्ड में जाएगा। मोती है, अब वो क्लासिकल में 100 तरीके के एग्जाम्पल वो यूज़ करेंगे, 100 तरीके की चीज़ें यूज़ करेंगे कि मोती भी कई बार गोल्ड में रिकमेंड कर देते हैं। बट देर इज़ अ सेट प्रोसीजर दैट वी हैव डिफाइंड इन दी कोर्स, तो आप उसको फॉलो कीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट रिकमेंडिंग। मोस्ट ऑथर्स ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी राइट दैट येलो सफायर शुड बी वॉर्न इन द राइट इंडेक्स फिंगर, फ्यू जेम्स इन द लेफ्ट हैंड। देखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डजेंट मैटर एट ऑल। जनरली मेल्स के लिए राइट हैंड, फीमेल्स के लिए लेफ्ट हैंड रिकमेंडेड है। बट कई बार ऐसा होता है कि क्लैश ऑफ द फिंगर्स भी होता है, पन्ना रिकमेंड किया, मोती रिकमेंड किया, दोनों सबसे छोटी उंगली में जाने हैं, या तो एक ही में कंबाइंड अंगूठी बनवाइए, या एक राइट में कीजिए एक लेफ्ट में कीजिए। इसमें कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि वो एक ही हाथ में पहन सकते हैं, दूसरे में पहन नहीं सकते। जेमोलॉजी, जेम थेरेपी, कलर थेरेपी, फिंगर्स, इनका एक स्पेसिफिक सेट रूल है, इसका एक स्पेसिफिक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, जो किसी समय ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि कवर किया जाए। बट अभी के लिए तो ये समझ के चलिए कि जो फिंगर हैं वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फिंगर में कौन सा स्टोन जाना है। मेटल का सेट फार्मूला है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर रिंग्स में नहीं पहन सकता क्लाइंट, कोई इशू है, तो पेंडेंट बना के गले में डाला जा सकता है। कंबाइंड पेंडेंट एक स्पेसिफिक मेटल में भी बन सकता है। Most often a native says that he was born between 8 AM and 8:30 PM. 8:30 AM and 8:30 PM, more than 12.5 hours difference. सर चार्ट ठीक नहीं बनेगा। इवन 8 AM to 8:30 AM if you meant, आधे घंटे का डिफरेंस भी अगर मान के चलें तो हमारी राइजिंग डिग्री चेंज हो जाएगी। किसी ना किसी केस में तो लगन भी चेंज हो जाएगा, अगर उस आधे घंटे की ड्यूरेशन में लगन चेंज हो रहा होगा तो
टाइम की एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ही सेज दैट ही वॉज बॉर्न बिटवीन 8 AM एंड 9 AM, जनरली ऐसा हो जाता है, देन हाउ टू कॉम्प्रोमाइज विद द टाइम? देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज. इज देयर एनी जनरल रूल फॉर दिस इशू? सिंपल रूल है लतीफ़ कि टाइम ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी सारा कुछ डिफाइन करेगी आपकी रीडिंग को, आपकी एक्यूरेसी को, आपकी प्रोडिक्शन को. अगर टाइम ही प्रॉपर नहीं है तो आपकी सारी रीडिंग गलत हो जाएगी, एंड देन पीपल विल से एस्ट्रोलॉजी डज नॉट वर्क, दिस पर्सन डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी. अब स्टार्टिंग पॉइंट तो वहीं से है जो सामने से क्लाइंट आपके पास लेके आ रहा है, वही अगर गलत हो गया उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है. हमारी गलती तब है कि हमने सिस्टम समझने की कोशिश नहीं की, हमने नॉलेज पूरी ली है बिना कंसल्टेशन देनी स्टार्ट कर दी, वहाँ पे हम गलत हैं. हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाएंगे, सिस्टम को समझेंगे, सिग्निफिकेशंस को समझेंगे, रूल्स को समझेंगे, उसको प्रॉपरली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. क्लाइंट को सजेशन देने से पहले थाउजेंड्स ऑफ हॉरोस्कोप्स अपनी एंड पे एनालाइज करके हम समझेंगे सिस्टम को, उसके बाद हम मार्केट में वेंचर आउट करेंगे एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो हमारी रीडिंग्स गलत नहीं होंगी. स्टिल वन कंडीशन रिमेन्स देयर कि टाइम ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी क्या है. अब जहाँ पे ऐसा केस आ जाता है कि 8 AM से मेरा जन्म 8 से 8:30 के बीच में है या 9 से 9:15 के बीच में है, मुझे नहीं पता, देन इन दैट केस वी हैव टू डू BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन दी स्पेसिफिक 4 और 5 और 10 पास्ट इवेंट्स ऑफ द लाइफ. मल्टीपल हॉरोस्कोप्स हमें बनाने पड़ेंगे उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में. कहीं पे अगर लगन चेंज हो रहा है तो नेचुरली पहले तो असेंडेंट ही फिक्स करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल टॉरस असेंडेंट है कि जेमिनी है, लियो है कि वर्गो है. असेंडेंट फिक्स करने के बाद राइजिंग डिग्री, क्योंकि अकॉर्डिंगली दशाएं चेंज होंगी, तो वो इवेंट्स कौन से चार्ट के साथ कहाँ मैच करते हैं. इट्स अ वेरी टीडियस एक्टिविटी, एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर दैट वी गेट टू हैव द करेक्ट हॉरोस्कोप ऑफ द पर्सन, एंड दैट गिव्स द करेक्ट आंसर्स. तो ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में फिर चला जाता है, बहुत टीडियस एक्टिविटी है, प्रैक्टिस के साथ आएगी. अनलेस यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालाइज द वन नेटल चार्ट वी कांट प्रोसीड फर्दर. तो टाइम हमेशा हमारे पास एक्यूरेट होना चाहिए. I will take up all these questions after we have covered the questions of the list. Raj Kumar ji, can we suggest the gem therapy for a weak benefic planet? Yes, not afflicted or aspected by any malefic planet but posited. See, अगर planet राज कुमार जी अगर planet 6, 8, 12 में है तो उसको placement की weakness तो anyway है. We should recommend the gemstone. Does any benefic planet being disposited in a bad house overpower the significance of that house? देखिए, अगर डिस्पोजिटर की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो उस, अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि सूर्य कर्क राशि में है फॉर एग्जांपल, दैट मीन्स कि मून द लॉर्ड ऑफ कैंसर इज दिस डिस्पोजिटर ऑफ सन. तो उस हाउस को जहाँ पे सूर्य बैठा है रूल तो मून ही कर रहा है. अब उसकी जो स्ट्रेंथ है नेचुरली उस हाउस को तो इम्पैक्ट करेगी प्राइमरीली. सन वहाँ प्लेस्ड है तो वो प्लेसमेंट से अपना इम्पैक्ट करेगा, लेकिन गवर्न कौन कर रहा है उस हाउस को? द डिस्पोजिटर ऑफ सन विच इज द मून. So your answer to your question is yes, dispositor will overpower. The planet placed in a particular sign will not go beyond the strength of its dispositor. This is the principle that we have. As said, in case of exceptional cases, if Rahu or Ketu give good results, then is it necessary to advise for propitiating remedies? Definitely yes. क्योंकि ट्रांजिट एफ्लिक्शन तो कभी भी देंगे सर, कितना हम एनालाइज करेंगे उसके चार्ट को. आदमी ने, इंसान ने एक बार आके आपको अपना चार्ट दिखाया, 6 महीने साल पीछे वो आएगा नहीं आपके पास. पूरे साल वो क्या करेगा? आपने तो अपने हिसाब से एक रिकमेंडेशन दे के उसे भेजना है ना, हमने तो अपना काम पूरा करना है, वो फॉलो करे ना करे. अब नेटल चार्ट में प्लेसमेंट ठीक है, सेम वो एग्जांपल आ गया जो लतीफ़ के क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया था, लेकिन ट्रांजिट में वो कब एफ्लिक्शन दे देगा? या तो हम बैठ के 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल सारा ट्रांजिट एनालाइज करें. इतना टाइम एंड एनर्जी बड़ा मुश्किल होता है स्पेंड करना, स्पेशली व्हेन नंबर ऑफ केसेस आर एक्चुअली फ्लोइंग इन हंड्रेड्स, नंबर ऑफ हंड्रेड्स, बड़ा मुश्किल है. एक जनरल रीडिंग हमें देनी बहुत ज़रूरी है. स्पेसिफिकली मेलेफिक्स के लिए रेमेडीज रेकमेंड कर देनी चाहिए, क्योंकि नेटल चार्ट में अगर एफ्लिक्शन नहीं भी है, ट्रांजिट में कोई प्लैनेट उनकी एफ्लिक्शन में निकल गया, स्पेशली फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मून, मरकरी, वीनस फास्ट मूविंग है, कहीं ना कहीं ट्रांजिट में राहु केतु के चपेटे में आ गए, एफ्लिक्शन देंगे वो. तो राहु केतु से एफ्लिक्शन आएगी उन वीक प्लैनेट्स पे, तो उनकी रेमेडीज कंटिन्यूसली भी अगर कोई परफॉर्म करता है दैट इज़ वेरी गुड.
Joginder Gagneja ji's questions. During the lectures, it has been mentioned that for foreign travel, we see the houses 7th, 9th, and 12th. But in some examples, even 10th and 11th are also seen. Yes, because 10th house is the house of profession, 11th house is the house of gains. Sometimes person has to go to foreign land with respect to his profession. ऑफिस असाइनमेंट के लिए जाना पड़ रहा है, तो अगर 10th हाउस का भी कहीं कनेक्शन, 10th लॉर्ड एंड 12th, 10th हाउस का 12th से कोई कनेक्शन है, 10th लॉर्ड का 9th हाउस से कोई कनेक्शन है, तब भी फॉरेन सेटलमेंट के, फॉरेन ट्रेवल के चांसेस उस केस में बनते हैं प्रोफेशन के लिए. It has also been mentioned that if Rahu is close to the MEP, then it can also take the native to foreign and in fact help in getting the PR. Definitely yes. राहु का impact फॉरेन हाउसेस के साथ जहाँ होगा, 7वें, 9वें, 12वें के साथ, 8वें के साथ भी इनफैक्ट, तो फॉरेन ले जाने के चांसेस, फॉरेन जाने के चांसेस, सेटलमेंट के चांसेस बनते हैं. राहु बीइंग दी सिग्निफिकेटर ऑफ मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स और एम्बिशन आदमी को देता है. और जिस भी हाउस में राहु की प्लेसमेंट होती है वहाँ की सिग्निफिकेशंस को एक्सपैंड करता है. एंड रिजल्ट की हम बात नहीं कर रहे, बट इनिशियली एक्सपैंड तो करता है. Is this is workable in all the cases or it is working only in few cases? No, this, see, the significations that we talk about, they can manifest in variety of ways, that we have said a couple of times कि वो जो भी signification, multiple significations है किसी भी हाउस की, not necessary कि अगर 12th हाउस की हम बात कर रहे हैं तो वो फॉरेन सेटलमेंट ही होगा उसका. डिपेंडिंग ऑन दी अदर कॉन्फ़िगरेशंस हमें देखना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकालना जोगिंदर जी गलत होगा कि 12वें घर का प्लैनेट 10th में है तो फॉरेन सेटलमेंट होगी ही होगी. नॉट नेसेसरी. असेंडेंट की कॉन्फ़िगरेशन, बाकी हाउसेस की कॉन्फ़िगरेशन, टोटैलिटी, इन टोटैलिटी वी हैव टू सी दी हॉरोस्कोप, और वो थोड़े समय के साथ आप कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे. बाकी हाउसेस की सिग्निफिकेशन ज़रूर मैटर करती हैं. अब अगर एग्जांपल लिया हमने 12th हाउस का फॉरेन सेटलमेंट के लिए, 12th हाउस इज ऑल्सो दी हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. अगर असेंडेंट और 6th हाउस की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो घर से दूर जाना है, यानी कि फॉरेन लैंड की हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर छठे और पहले का सिग्निफिकेटर भी प्रॉब्लम में है और 12th हाउस की ट्रांजिट एफ्लिक्शन आ गई, हॉस्पिटल पहुंचेगा आदमी, फॉरेन लैंड नहीं जाएगा. It has also been mentioned that for secret love affairs, we see the connection between house number 5 and 8. In some cases, it also involves 7th. Yes, because 7th house is the house of partners. 5th house is the house of love affairs, emotions. 8th house is the house of secret activities. इसके साथ 7th भी क्यों, 12th भी अगर हम इन्वॉल्व कर लें, the house of bed pleasures. ये सारी सिग्निफिकेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, प्री मैरिटल रिलेशंस, मोर देन वन पार्टनर, ये सारी चीज़ें इन्हीं हाउसेस से क्लियरली इंडिकेटेड होती हैं. मोर ओवर वहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ राहु और राहु लाइक प्लैनेट, दैट इज द मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट, 8th और 12th लॉर्ड, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. रिगार्डिंग द ईटिंग हैबिट्स ऑफ नेटिव, वेदर ही इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन और हैविंग ड्रिंकिंग हैबिट्स और नॉट. सी, ड्रिंकिंग हैबिट की अगर बात करें, दैट मीन्स अल्कोहलिज्म और एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन. Primarily the role of Rahu and Rahu like planets again will be there, and their impact especially on the 2nd house, because 2nd house is the house of mouth. Ascendant, person's own self, person's temperament, person's habits, they are seen from the 1st and 2nd house. और वहाँ पे अगर 12th लॉर्ड का या मोस्ट मेलेफिक का इम्पैक्ट आ गया तो वो इस तरीके के ट्रेट्स देता है. What about the horoscope of twins? See, ट्विंस की अगर बात आएगी तो नेचुरली टाइम डिफरेंस होगा, कुछ तो टाइम डिफरेंस होगा, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट. डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम डिफरेंस द राइजिंग डिग्री विल चेंज. प्लेसमेंट प्लैनेट्स की सेम रहेगी, किसी किसी केस में असेंडेंट चेंज हो सकता है, किसी किसी केस में असेंडेंट सेम रह सकता है, लेकिन राइजिंग डिग्री चेंज होगी. मून की डिग्रीज स्लाइटली चेंज होंगी मिनट वाइज, और जब मून की डिग्रीज चेंज होंगी तो हमारी दशा टेबल पूरी चेंज होगी. एंड दैट दीज minor changes will make a whole lot of difference in the life of the natives. We have to check this with the help of examples. So जहाँ examples होंगे twins के, हम वहाँ पे इस चीज़ को study कर सकते हैं. And it is very easy to identify with the help of systems approach principles. Regarding weight of stones, which finger, see ये finger को तो I think course में cover किया हुआ है, weight भी cover किया है. Depending on the level of weakness of the benefic planet, and depending on the level of affliction coming to that planet, minimum that we must recommend is
4.67 कैरेट्स मिनिमम, 5.25 रत्ती। कैरेट में बताएं तो 4.67 कैरेट्स इज द मिनिमम, रत्ती में बताएं तो 5.25 रत्ती इज द मिनिमम। वी कैन गो higher onto the higher weight depending on the level of weakness and depending on the level of affliction. For example, अगर कोई प्लैनेट सिर्फ प्लेसमेंट की वजह से वीक है, 5.25 रत्ती काम कर देगा। प्लेसमेंट की वजह से वीक है, डेबिलिटेटेड है, नवाज में डेबिलिटेटेड है, प्लस एफ्लिक्शन आ रही है, मल्टीपल वीकनेसेस और एफ्लिक्शन हैं, तो वेट बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, बट सिंपल ग्राउंड रूल इज की। और सबसे बड़ी बात अगेन बजट। अगर एक ऐसा स्टोन बृहस्पति के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, येलो सफायर ओरिजिनल जेमस्टोन की बात कर रहे हैं, इट विल गो इन थाउजेंड्स। अब उसमें आपने एक रत्ती भी बढ़ा दिया तो प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन इट ऑल डिपेंड्स, हमारा काम है रिकमेंड करना, पर्सन हैज़ टू डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ जेमस्टोन ही वांट्स। तो एक नॉमिनल रेंज, अब 5.25 की जगह बढ़ाना है तो आपको 6.25 6.5 तक लेके जा सकते हैं, 7.25 भी, उससे ऊपर जो वो अफोर्ड कर सके, बट मिनिमम इफ यू टॉक इट इज 5.25 रत्ती। एनी क्वेश्चंस? नो। ओके, नीलेश, okay, mentioned below is my short interpretation of astrological remedies. Would like to confirm if below mentioned points are correct. Remedies to strengthen need to be performed only for benefic planets. Yes, correct. No strengthening to be performed for malefic planets in any case. That's what we discussed in today's session in the very early part. Malefic planets can only be appeased by performing propitiatory measures to decrease their effect. Very good. Yeah, that's what has to be done. Astral remedies are two-way astral remedies. One is to strengthen the weak planets, weak favorables, strengthen them, and propitiate the malefics to bring down their negative impact. So two-way astral remedies are recommended. This is correct, Nilesh. What will be the effect of propitiatory remedies if propitiatory measures are also performed for benefic planets in addition to remedies? They can be done. It's totally optional. It's totally up to the person, but there is no need actually. Will it affect the native positively? See, anyway, if you do the charities, who has said that charities will give any sort of bad impact? Charities से कभी नुकसान हुआ है? बट ज़रूरत नहीं है, तो मतलब पहला चैलेंज नीलेश यहाँ पे यही होता है कि हम जो भी रेमेडीज रिकमेंड करते हैं वही इंसान करके राजी नहीं। मेलेफिक्स की तो करें एटलीस्ट, अब बेनिफिक्स की आप साथ में ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो ज़रूर करें, कोई नुकसान नहीं है। Since performance of astrological remedies require a strong Jupiter or strong 9th house lord placement, can we suggest default remedies to strengthen Jupiter? Again, number of remedies बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बट हाँ जुपिटर की स्ट्रेंथ के ऊपर हमने काफ़ी बार ये देखा है कि अगर जुपिटर ही स्ट्रेंथ में नहीं है तो इंसान फॉलो नहीं करता एडवाइस, उसका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड होता नहीं है, इन चीज़ों में यकीन नहीं करता, अपने को लोगों से ऊपर समझता है, तो वो कहाँ मानेगा आपकी बात। वो फॉर दैट मैटर विजडम एक्चुअली इंसान को अगर चाहिए तो जुपिटर की स्ट्रेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी कैन रिकमेंड प्रोवाइडेड जुपिटर इज नॉट मेलेफिक, आई थिंक यू ऑलरेडी मेंशनड इट। अगर मेलेफिक नहीं है तो जुपिटर को स्ट्रेंथ देनी है, दे सकते हैं, बट वी हैव टू सी कि बाकी जहाँ पे रिक्वायर्ड है स्ट्रेंथ देनी वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर दशा लॉर्ड जुपिटर नहीं है, असेंडेंट लॉर्ड कोई दूसरा प्लैनेट है, उनके लिए 2 जेमस्टोन आप ऑलरेडी रिकमेंड कर रहे हैं, तो फिर जुपिटर के लिए या तो वो हल्की फुल्की स्ट्रेंथ ही देनी है, तो फिर या तो चले जाएं इस पे सब्स्टिट्यूट्स पे, या फिर सिंपल कलर थेरेपी को यूज़ कीजिए। एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन ऑफ 5 डिग्री, confirmation required if following steps and understanding mentioned is correct order to determine the strong affliction. Identify MEP, yes. Identify planets in 5 degree range, yes. Identify planets falling under aspect of these planets within 5 degree range. 5 डिग्री रेंज में जब देखेंगे तो ये देखना होगा कि जिस प्लैनेट में इम्पैक्ट है उसका ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है, वो अदरवाइज कितना स्ट्रेंथ में है। अगर राहु का इम्पैक्ट सूर्य पे जा रहा है और सूर्य अदरवाइज स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस 1 डिग्री है। राहु के साथ साथ शनि का भी इम्पैक्ट आ गया जो कि शनि अनफेवरेबल था, तो ऑर्ब ऑफ इन्फ्लिक्शन 2 डिग्री है। अगर वो नॉन मूल त्रिकोणा साइन में है या प्लैनेट अदरवाइज वीक है तो 5 डिग्री है। तो वो तीनों प्रिंसिपल्स भी आपको साथ में कंसीडर करने पड़ेंगे। फॉर वीक प्लैनेट्स फॉलिंग अंडर द एस्पेक्ट ऑफ मेलेफिक्स विद इन 5 डिग्री ऑफ MEP, for weak benefic falling under the aspect of malefics within 5 degree of the MEP. MEP का कॉन्सेप्ट अलग है नीलेश, एस्पेक्ट ऑफ 5 डिग्री अलग है। हाउस ऑफ वीक बेनिफिक विल बी स्ट्रांगली अफ्लिक्टेड थ्रू आउट ±5, दिस इज मोर और लेस करेक्ट।
if the lord or significator of the afflicted planet or afflicted house is strong. See, if the house is afflicted, then its lord cannot be strong. उस पे affliction तो आ गई, तो एक weakness तो वहीं पे है, otherwise strong की बात बने. If we say the lord or the significator of the afflicted house is otherwise strong but having the affliction, then affliction will not be that strong. Yes, your understanding is correct. If lord or the significator of the afflicted house is also weak, or then the affliction will be strong. Yes, वो अदरवाइज भी वीक है. अगर मान लीजिए सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य एक उच्च राशि में यानी कि अरीज में प्लेस्ड है, नवांश में भी स्ट्रांग है, डिग्री वाइज स्ट्रांग है, कोई और अफ्लिक्शन नहीं है, लेकिन लियो पे कोई अफ्लिक्शन है उसके मूल त्रिकोण साइन पे, तो वो माइल्ड अफ्लिक्शन कहेंगे, अदरवाइज स्ट्रांग सन. लेकिन अगर जहाँ पे सूर्य बैठा है या तो वहाँ पे अफ्लिक्शन हो, सूर्य पे डायरेक्टली कोई अफ्लिक्शन हो, या सूर्य डेबिलिटेटेड साइन में हो, या सूर्य नवांश में भी डेबिलिटेटेड हो, सो सन विल बी अदरवाइज वीक ऑल्सो. उस केस में अगर लियो साइन पे कोई अफ्लिक्शन है, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग अफ्लिक्शन. फॉर एम्प्टी हाउसेज फॉलिंग अंडर एस्पेक्ट्स ऑफ मेलेफिक विद इन 5 डिग्रीज ऑफ MEP, strength of lord or significator of that house needs to be determined to estimate level of affliction. Yes, उस केस में नीलेश अगर वो नॉन मूल त्रिकोणा हाउस है, एम्प्टी हाउस के केस में घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, बट साथ ही ये देखना होगा कि वहाँ पे एम्प्टी साइन यानी कि मूल त्रिकोण साइन है या नहीं है. अगर एम्प्टी साइन है तो डिस्पोल्टर को भी देखना पड़ेगा, और अगर नॉन मूल त्रिकोणा साइन है तो स्ट्रेट अवे 5 डिग्री का रूल एप्लीकेबल होगा. Combustion by sun, although you have covered it in this course, can you please discuss it again? I think we are approaching 12 p.m. and we may have to overshoot by a few minutes. If everyone is okay, I can continue. I don't have any problem. And if still there are any, I think I have missed mentioning some of the queries by someone, Rajkumar ji's queries. They are done. I think we are already done. Let me know if I have missed anything, and if we have to overshoot by few minutes, I think it should be okay. Let me know your views, and then we can cover the questions that are coming in the comment box. Let me first try to do this. Criteria for combustion. Do we need to strengthen? This is the next question. Okay. Combustion by sun. Any planet Nilesh that is coming closer to sun gets combust, and by what degree of level, that is covered in the course. So just follow that table. उस केस में एस्पेक्ट काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हम कंजंक्शन की बात करते हैं. कंजंक्शन नॉट नेसेसरली कि उस हाउस में हो रही हो. अगर प्लैनेट एक घर पीछे भी है लेकिन उसका लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस फ्रॉम सन इज कमिंग विद इन दैट रेंज दैट इज स्पेसिफाइड इन द टेबल, देन दैट प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज कंबस्ट. और कंबस्टन की वीकनेस कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है. नेटल चार्ट में अगर कंबस्ट है कोई बात नहीं, उसकी वीकनेस कंबस्टन की प्रॉब्लम तभी करेगी जब ट्रांजिट से कोई अफ्लिक्शन आएगी उस प्लैनेट पे. अदरवाइज वो प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस बॉदर नहीं करेंगी इन जनरल. उसकी दशा भी लग जाए कंबस्ट प्लैनेट की, अगर वो प्लैनेट अदरवाइज स्ट्रांग है तो अपनी सिग्निफिकेशंस को फ्लरिश करेगा सिर्फ और सिर्फ जब वो प्लैनेट ट्रांजिट अफ्लिक्शन में, नेटल टू ट्रांजिट या ट्रांजिट टू नेटल जब प्रॉब्लम में आएगा, तब वो स्पेसिफिकली उसकी सिग्निफिकेशंस उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए जब तक वो ट्रांजिट प्रॉब्लम है परेशान करेगी. डू वी नीड टू स्ट्रेंथन प्लैनेट्स इन सन लाइक हाउसेज 2, 3, 9 इफ दे आर वीक इन डिग्री और अफ्लिक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मेलेफिक, और देयर प्लेसमेंट इन दीज हाउसेज इटसेल्फ स्ट्रेंथन्स दीज प्लैनेट्स. सी, planet placed in the sun-like house gains additional strength, but if they are otherwise also weak, we may have to strengthen them. जो कैलकुलेशन है इसके पीछे कि मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं या प्लैनेटरी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, दैट इज बीइंग कवर्ड इन द एडवांस्ड सेशन, एडवांस कोर्स. बट ग्राउंड रूल इज कि नंबर ऑफ एफ्लिक्शंस एंड नंबर ऑफ वीकनेसेस अलग से आप आइडेंटिफाई कीजिए. Even if the planet is placed in the 9th house, which is a sun-like house, first of all we have to see कि वो डिग्री वाइज उसकी स्ट्रेंथ कैसी है प्लैनेट की इटसेल्फ, इन्फेंसी या डेबिलिटेशन, इन्फेंसी या ओल्ड एज में तो नहीं है. सेकेंडली वो वहाँ पे मूल त्रिकोणा साइन प्लेस्ड है कि नहीं, डेबिलिटेशन है कि नहीं प्लैनेट को, नवांश में और नेटल चार्ट में कंबस्चन है कि नहीं, कोई अफ्लिक्शन आ रही है कि नहीं. सिर्फ सन-लाइक हाउसेज में बैठने से उसको स्ट्रेंथ मिल रही है वो एक फैक्टर है, बट बाकी लेवल्स पे उसकी वीकनेस कितनी है उसको मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर वो बाकी लेवल्स पे वीक है
तो डेफिनेटली हमें उसे स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। साथ ही ये देखना ज़रूरी है कि किस प्लैनेट की हम स्ट्रेंथनिंग मेजर्स रिकमेंड कर रहे हैं। अगर ऐसे प्लैनेट की हम स्ट्रेंथनिंग मेजर्स रिकमेंड कर रहे हैं जिसकी दशा ही अभी ऑपरेशन में नहीं है या आनी नहीं है, या जो क्वेरी इंसान की है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों स्पेसिफिक एक जेमस्टोन पे उसका खर्चा करवाएंगे। कौन सा जेमस्टोन उस समय रिक्वायर्ड है, किस चीज़ के लिए क्वेरी आपके पास एनालिसिस के लिए आई है, क्या मैटर ऑफ द लाइफ उसको कंसर्न इस वक्त कर रहा है, परेशान कर रहा है, या तो वो प्लेनेट होगा या दशा लॉर्ड होगा। प्राइमरीली दशा लॉर्ड ही होता है क्योंकि दशा से रिलेटेड ही सिग्निफिकेशंस हिलती हैं लाइफ में। तो दशा लॉर्ड को स्ट्रेंथन करना होता है या फिर असेंडेंट लॉर्ड को एज अ ग्राउंड रूल। एडिशनल सिग्निफिकेशन, एडिशनल प्लैनेट्स क्या स्ट्रेंथन करने हैं, तो उस कैटेगरी में अगर कोई प्लैनेट है तो रिकमेंड किया जा सकता है, टाइम फ्रेम बताया जा सकता है कि ठीक है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब इस प्लैनेट की दशा आने वाली हो तो ये जेमस्टोन भी रिकमेंडेड है। दिस इज हाउ यू कैन टेक अ डिसीजन। सो आई थिंक ऑलमोस्ट, मुझे लग नहीं रहा था कि सारी क्वेरीज हम कवर कर पाएंगे, बट आई थिंक या तो मैंने बहुत फास्ट पेस में किया है, यू मे हैव टू रिवाइंड द लेक्चर्स, और if you still have some queries left, we can still remain online for next 10 minutes, and I just minimize this queries section, and I can straight away look at the comments section, comment box, and you guys are free to ask more queries if you want. अभी जो queries हमने डिस्कस की हैं उनमें से कोई चीज़ आपने दोबारा समझनी है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए, सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड इफ़ देर इज़ नो क्वेरी देन वी मे conclude this session here. I am okay either way. So there is one question that Manikkam ji asked, what if the lord of 6, 8 and 12 houses aspect their own house, that is 8th house lord aspecting the 8th house, similarly 6th and 12th house if they are aspecting their own house, if in the natal chart 6th lord is placed in 6th house then it is considered good. अगर छठे का स्वामी 12वें में बैठा है और 12वें से छठे को देख रहा है तो वो कोई अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है। उस केस में वो स्ट्रेंथन नहीं करेगा अपने हाउस की सिग्निफिकेशन को। अगर वो छठे का लॉर्ड होकर छठे में बैठा हो तब वो पॉजिटिव माना जाएगा। आई थिंक दिस क्लियर द क्वेश्चन, एंड लेट मी सी इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस हियर। सो इट मीन्स केतु कैन डिस्ट्रॉय सैटर्न्स पावर इफ सैटर्न इज इन इट्स ओन हाउस। यस मिलिंद जी, I think I answered you on the email also. What does it mean to be in own house? Own house means either in Capricorn or Aquarius, the signs ruled by Saturn. When we say any planet is placed in its own house, that means that sign is also ruled by that planet. Venus in Taurus or Libra, Jupiter in Sagittarius or Pisces is considered to be in the own house. So we have to look at it that way. What would have happened if Ketu and Saturn were both in Libra at the same degrees? If Ketu and Saturn are at same degrees, that means Ketu is afflicting Saturn, and if Saturn is also malefic then Saturn is also afflicting Ketu. So we have to see which ascendant we are talking about. In Libra Saturn is exalted, so exaltation से तो Saturn को strength मिल गई, लेकिन केतु ने तो afflict कर दिया, वो तो प्रॉब्लम करेगा Saturn की significations के लिए। Saturn की general significations और prime significations wherever the Aquarius sign is falling in place. राइट। सो आई बिलीव आज के सेशन से कुछ तो नया सीखे होंगे आप लोग, और जो भी आगे भी क्वेरीज आपकी हों तो यू आर फील फ्री टू पोस्ट देयर क्वेरीज और विल ट्राई टू आंसर देम। और एग्जांपल्स जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकें। अभी मैं देखता हूँ ग्रुप में एक्टिविटी थोड़ी कम है, बहुत कम लोग उस लेवल पे क्वेरीज कर पा रहे हैं, या तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है या अभी कोर्स स्टडी नहीं कर रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है। तीनों में से कोई एक बात है, चौथी हो नहीं सकती। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रवीण जी, एडवांस कोर्स की कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, और होपफुली इस महीने में हम कोर्स लॉन्च कर देंगे। आई हैव ऑलरेडी फाइनलाइज द डेट एज वेल, बट आई विल लेट यू नो व्हेन दैट कोर्स विल बी लॉन्च्ड। We are facing some issues in the quiz section today in the website. There is some technical issue, some server issue. So team is working on that. First we will resolve that quiz issue, and after that we will upload all the videos, we will publish the content, and then we'll let you know when the course is available. That is an exhaustive course. वो ये जैसे फंडामेंटल कोर्स में हमारे 15 घंटे के लेक्चर्स हैं, एडवांस्ड कोर्स में हमारे 20 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर्स हैं, 28 चैप्टर्स हैं।
केस स्टडीज़ उसमें ऑलमोस्ट 86 हैं, 75 मेन केस स्टडीज़ एंड देन उसमें हमने मुहूर्त सिलेक्शन भी कवर किया है, मैच मेकिंग भी कवर किया है, तो ऑलमोस्ट 86 केस स्टडीज़ आर देयर, बट विल लेट यू नो व्हेन दैट हैपन्स. Will we get recording of this session? Yes, Parvesh ji. Previous session also the recording is available in the group. This recording will also be available in the group. And what I plan to do is I plan to upload these sessions on YouTube as well, and the links will be published on the website. So will be very easy for you to find all the webinars that we conduct. Kindly clear my query in comment box. Let me review comment box once again, Rajkumar ji. Just wait a minute. Sir, make a WhatsApp group of these 20 people so that we can discuss among us sometimes. We will review this suggestion, Deepak ji. Let me first see which question Rajkumar ji. Oh yes, I think there was one question which I said I will cover later on. Thanks Rajkumar ji for reminding. Just wait a minute. Let me check. How should we decide the second significator of any aspect of life? Second aspect of life, like children, marriage, fortune, profession. I think this is the question you are talking about, Rajkumar ji. How should we decide the second significator of any aspect of life, like children, marriage, fortune, profession, etc.? I think this is the question that you said. So, house groupings actually what we are talking about. This concept basically I have covered in the advanced course. For any specific life area, there are multiple houses that are responsible. For example, if we talk about children, as per your example, children, primarily prime house is the fifth house we see. If there is a Mool Trikona sign, if for example fifth house does not contain a Mool Trikona sign, then we have to move to the second house, the house of addition into family. So the entire table is available, the entire set of prime houses and secondary houses available, and beyond secondary houses also. It may happen कि fifth house में कोई मूल त्रिकोण sign नहीं था, so we move to the second house, and second house also does not have any मूल त्रिकोण sign. Then we consider the general significator of fifth house for that specific life area. So the table of secondary significators is available, additional significators that we call. The table of general significator of a house is also available. That I have covered in the advanced course. I can share it here also. You will find it in the books also. So for children, fifth and second. For marriage, seventh and second. For profession, 10th and second. For income, 11th and 6th. So all these things are available. So I think it's covered. Rajkumar ji, I think now your query is done. If you still have any query, please get back to me, either here or directly on the email or WhatsApp. I am okay either way. So we have already crossed 10 minutes beyond our scheduled timing. I think everyone over a weekend already have some other commitments as well. So we must conclude this session over here, I think. And I'll just wait for 10-15 seconds more. If there are no queries, then we'll just end this session. Otherwise, we try to answer one more query. So, right, almost all the queries were done. Thanks very much. Thanks for joining in and making this session again a success. So the recording will definitely be available in the group, which you can watch. The students who have other commitments, who were not able to join in live session, they can watch the recording. And if they also have any sort of query with respect to the areas covered in today's session, feel free to send back the queries. I am confused only in triple transit concept. Right. So Rajkumar ji, triple transit will come with practice, with some time. First try to analyze the natal chart and the Navamsha chart, and then triple transit will come. What we can do, whatever are the pain areas, whatever is the weak area of any student, all the students, if they can help others also, we can, rather than going for the doubt clearing session, we can डिसाइड ऑन टू दैट स्पेसिफिक एरिया. हम एक वही सेशन रख लेंगे. फॉर एग्जांपल ट्रिपल ट्रांजिट की बात है, बैठा जी को भी शायद इसमें इशू आता है, उन्होंने भी मुझे एक बार बोला था कि सर ट्रिपल ट्रांजिट में बहुत इशू है, तो हम एक स्पेसिफिक सेशन ट्रिपल ट्रांजिट के लिए रख लेंगे, या कोई भी और एरिया जहाँ पे इशू आता है उसके लिए अलग से एक सेशन रख लेंगे, और उस सेशन में वो सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे.
So I think that way we can cover a lot of details of the systems approach principles, and that is very much important. That is really required to understand Muhurat selection, matchmaking, detailed analysis. So we'll do that. Don't worry about it. Thank you. So with this, I thank you all very much, and let's conclude this session here. And bye bye. Thanks.